اسرائیلی طیارے ترکیہ کی فضائی حدود میں گھس گئے۔ ناظرین، آپریشن وعدہ صادق سوم کے 10ویں مرحلے کا آغاز ہو چکا ہے۔ حیفا، تل ابیب اور مختلف مقامات اسرائیل کے لرز اٹھے ہیں۔ ناظرین، ایرانی فوج کی جانب سے ایک دھمکی، ایک وارننگ جاری کر دی گئی ہے کہ حیفا کو، تل ابیب کو اور مختلف مقامات کو خالی کر دیا جائے۔ اگر خالی نہیں کیا گیا تو پھر وہاں پر لاشوں کے انبار ہوں گے۔ ناظرین، اس دھمکی کی وجہ سے اسرائیلی شہریوں نے اپنا شہر، اپنے گھر بار سب کچھ چھوڑ کر وہاں سے جانا، وہاں سے مجبوراً بھاگنا شروع کر دیا ہے۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کا یہ جو دفاعی سسٹم آئرن ڈوم ہے، ڈیوڈ سلنگ ہے، تھاڈ ہے، ایروسپیس 2 اور 3 ہے، یہ آخر کب تک ان کو ایران کے بیلسٹک میزائل سے بچا کر رکھے گا؟ اس کی کیپیبلٹی کتنی ہے؟ کب تک یہ حملوں کو روک سکے گا؟ اس کے متعلق بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کیا واقعی میں اس جنگ میں کودنے والے ہیں؟ اسرائیل اور ایران کے درمیان یہ جو جنگ جاری ہے، اس میں یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آج نہیں تو کل، بہت جلد، صرف ایک ٹویٹ کی دیری ہے اور اس کے بعد امریکہ بھی اس جنگ میں کود جائے گا۔ پاکستان کو کیا خطرات لاحق ہیں، یہ سب آپ کو بتائیں گے اپنے آج کے اس ولاگ میں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، مجھے جواد یوسف کہتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں ترکیہ کی ایئر سپیس کی خلاف ورزی کی جاتی ہے اور ان کے صحافی نے ایک انکشاف کیا ہے کہ پہلی رات جب جنگ شروع ہوئی تھی تو پھر اسرائیل کی جانب سے ترکیہ کی حدود کی خلاف ورزی کی گئی۔ ان کی فضائی حدود کے اندر کچھ سٹیلتھ فائٹر جیٹس اور کچھ فائٹر جیٹس، کامبیٹ فائٹر جیٹ جو اسرائیل کے طیارے تھے، وہ حدود میں داخل ہوتے ہیں، فضائی حدود میں داخل ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ غلطی تھی؟ غلطی سے ان کی فضائی حدود میں داخل ہوئے؟ تو ناظرین، بالکل بھی نہیں، یہ غلطی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک پری پلانڈ منصوبہ دکھائی دے رہا تھا۔ ایک پری پلانڈ منصوبہ جس کے اندر یہ دیکھنے کی کوشش کی گئی تھی، یہ ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ کیا ترکی کی ایئر ڈیفنس ایکٹیو ہے، کیا ترکی کا دفاعی نظام ایکٹیو ہے یا پھر نہیں۔ کیونکہ یہ جنگ جو کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان اس وقت جاری ہے، اگر کل کو ترکیہ نے ایران کی حمایت کی تو پھر ان کے خلاف اگر کارروائی کی جاتی ہے تو سب سے پہلے ان کے دفاعی نظام کو جانچنا بہت ضروری تھا۔ اسی لیے اسرائیل نے یہ کیا اور ان کے دفاعی نظام کو جانچنے کے لیے ان کی حدود کی خلاف ورزی کی، فضائی حدود کی خلاف ورزی کی۔ لیکن امیجن what happened؟ ناظرین، ان کا جو ہے دفاعی نظام فوری طور پر ایکٹیو ہوا، ان کے لڑاکا طیارے فوری طور پر ایکٹیو ہوئے، فضائی جو ہے انہوں نے محاذ اپنا سنبھالا اور فضائی حدود کی خلاف ورزی پر ان کو وارننگ جاری کی۔ ناظرین، F-16 ان کے طیارے اور جدید ترین جو ان کے لڑاکا طیارے ہیں، وہ فضاؤں کے اندر جو ہے پرواز بلند کرتے ہیں اور پھر وارننگ جاری کرتے ہیں اسرائیل کو، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے فضائی حدود کی مزید وارننگ کی تو پھر اٹیک لانچ کر دیا جائے گا، جس کے بعد اسرائیلی طیارے دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ پہلی ہزیمت کا سامنا انہیں اٹھانا پڑا، پہلی ناکامی، پہلی شکست کا سامنا اٹھانا پڑا۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے ترکی کی جو ہے وہ دفاعی نظام کو تو ٹیسٹ کر دیا، لیکن جس طریقے سے پاکستان نے بھی ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کا جو ہے فیصلہ کیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور پھر اسرائیلی حملوں کی مذمت کی ہے، تو کل کو پاکستان کی فضائی حدود کو بھی ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے، کل کو پاکستان کے اوپر بھی حملہ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا سکتی ہے۔ حملہ تو دور کی بات، ناظرین، پاکستان کی ایئر سپیس کی خلاف ورزی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن پاکستان مکمل طور پر ایکٹیو ہے۔ پاکستان نے اعلان کیا ہے، اعلان یہ بات کی ہے، پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے دو ٹوک اعلان کیا ہے کہ اگر ہماری جانب کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو ہم اس کی آنکھیں نوچ لیں گے۔ ناظرین، اور ہم نے یہ جو ایٹم بم، ہم نے جو میزائلز اور راکٹس بنائے ہیں، یہ خون پسینہ دے کر بنائے ہیں۔ اس ملک کی بقا اور اس ملک کی سالمیت کے لیے تو پاکستانی فوج ایکٹیو ہے، پاکستانی ایئر فورس ایکٹیو ہے، پاکستان کا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی مکمل طور پر ایکٹیو ہے۔ اور ایران سے ہم نے جو ہے اپنے زائرین جتنے بھی وہاں پر تھے، زیارتوں کے لیے گئے ہوئے تھے، اور مختلف جو لوگ وہاں پر اسٹوڈنٹس موجود تھے، بسز کے تھرو اور مختلف روٹس کے تھرو جو ہے ان کو واپس لانا بھی شروع کر دیا ہے، اور وہاں پر بارڈر پر، ایران کے بارڈر پر ہماری فوج بالکل جو ہے وہ ایکٹیو کھڑی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد جو ہے بات کریں آپریشن وعدہ صادق سوم کی، تو ناظرین وہ جو ہے اس کے 10ویں مرحلے کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کے 10ویں مرحلے کے آغاز میں مختلف میزائلز، مختلف راکٹس جو ہے وہ داغے گئے ہیں، اور ناظرین یہ اسرائیل کے مختلف اسٹریٹجک اہداف کو، ان کے اہم تنصیبات کو جو ہے بیلسٹک میزائلوں سے جو ہے وہ حملہ بنایا گیا۔ اور ناظرین، یہ ایرانی جو ہے وہ خبر رساں ادارے اس بات کو رپورٹ کر رہے ہیں، بین الاقوامی میڈیا اس بات کو رپورٹ کر رہے ہیں، یہ نیا مرحلہ جو ہے 13 جون سے جاری 9 پچھلے مراحل کے بعد شروع ہوا ہے، جنہوں نے صہیونی حکومت کو جو ہے وہ کافی بھاری نقصان پہنچایا ہے، اور ناظرین یہ اب جاری رہے گا، اور ایک بہت بڑی تعداد میں ناظرین پہلی مرتبہ اسرائیل کے جو ان کی فضائی حدود ہے اس کے اندر انہوں نے ڈرونز بھی بھیج دیے ہیں۔ ناظرین، ہیوی ڈرونز، ہیوی اور خطرناک ڈرونز
ड्रोन्स इन्होंने ईरान ने जो है वो भेज दिए हैं और अब नाज़रीन सूरत हाल जो है वो मजीद एस्केलेट होती हुई हमें दिखाई दे रही है, एस्केलेशन बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि इसके साथ ही नाज़रीन ईरान के जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो है उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई का ऐलान कर दिया और उन्होंने ये ऐलान किया है कि इजरायली फौरन हैफा और तल अवीव को छोड़ दे। ये उनकी बेहतरी के लिए हम कह रहे हैं। अगर उन्होंने ये नहीं छोड़ा, ये उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया, नाज़रीन पूरी कौम से खिताब किया और पूरी कौम के साथ साथ पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया कि अगर हैफा और तल अवीव से इजराइलियों ने नकल मकानी नहीं की तो फिर उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये जो है एक उन्होंने इंतबा जारी की है, असल कार्रवाई अनकरीब अब शुरू होगी, ये उनकी जानिब से दो टोक ऐलान किया गया और ये भी कहा गया है कि नाज़रीन वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से निकल जाए। अगर उन्होंने ऐसा अमल न किया तो फिर उनकी जान को खतरा हो सकता है। और नाज़रीन उनका मजीद ये कहना था कि दुनिया को भी यकीन रखना चाहिए कि ईरानी कौम मुसल्लह अफवाज की क़यादत में शुहदा के खून का बदला लेगी और नाज़रीन ईरान कौम ने किसी भी जारियत के सामने सर नहीं झुकाया और फिर ईरान जो है वो इजरायली हुकूमत को उसके जराइम की सज़ा लाजमी तौर पर देगा। अब नाज़रीन वीडियो बयान ये जो जारी किया गया उनके चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की जानिब से और फिर उसके बाद नाज़रीन ये जिस तरीके से सिचुएशन हमें जो है मज़ीद कशीदा होती हुई दिखाई दे रही है। 10वें मरहले का आगाज़ हो चुका है। 10वें मरहले के आगाज़ के बाद नाज़रीन इजराइल के अंदर हम अगर सिचुएशन को देखें तो वहाँ से शहरियों ने जो है वो नकल मकानी करना शुरू कर दिया है। सेपरस जो है वो वहाँ पर रवाना हो रहे हैं थ्रू बोट्स, थ्रू याट्स और नाज़रीन वहाँ पर जो है लोगों की जानिब से ये कहना है कि हम मिसाइलों से तंग आ चुके हैं, हम ये जो अटैक्स हो रहे हैं, हम ये जो सूरत हाल बन चुकी है, हम इसमें सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचाना चाहते हैं, हम चाहते हैं हम अमन से रहें और ये सिचुएशन हमें ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए हम मजबूर हो चुके हैं कि हम जो है यहाँ से छोड़कर जाए, हम किसी पुरअमन जगह पर रहें। एंड दैट्स द रीज़न थ्रू बोट्स, समंदरी रस्तों के थ्रू वो अपने घरों को जो है वो छोड़ रहे हैं। अब इसके अंदर भी मुख्तलिफ खदशात ये जाहिर किए जा रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो कि मुख्तलिफ मकामात से यहाँ पर घूमने फिरने आए हुए थे, ये लोग छोड़कर जा रहे हैं। और फिर उसके अंदर दूसरा तबका उन लोगों को जाहिर किया जा रहा है कि जो लोग यहाँ पर आर्जी तौर पर आए थे, उनके अपने जो है वो बाहर मौजूद है। लेकिन नाज़रीन ढके छुपे अल्फाज में, दबे अल्फाजों में कुछ लोगों ने यह भी जाहिर किया कि हम इन मिसाइलों से जो है वो डर रहे हैं, हम ये जो अटैक्स हो रहे हैं इनसे डर रहे हैं, हम सूरत हाल जो है ये जो कशीदा हो रही है हम इससे डर रहे हैं, हम ईरान के हमलों से डर रहे हैं एंड दैट्स द रीज़न हम ये मुल्क जो है वो छोड़ कर जा रहे हैं। अब नाज़रीन इसके बाद एक और सवाल हम ये पैदा होता है कि ठीक है वो लोग तो छोड़ कर जा रहे हैं, अब क्या ईरान के अटैक्स की वजह से इजराइल का डिफेंस सिस्टम इतना कमज़ोर हो चुका है कि लोगों को उस पर यकीन नहीं है? आखिर ये ईरान के जो मिसाइल हमले हैं, रॉकेट हमले जो है, बैलिस्टिक मिसाइल ये जितने भी वो दाग रहा है, तो इजराइल का ये जो डिफेंस सिस्टम है, थार डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरोस्पेस 1, 2, 3, नाज़रीन ये किस हद तक केपेबल है कि वो इन तमाम तर बैलिस्टिक मिसाइल्स को, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोक सके? तो नाज़रीन इसकी अगर हम बात करें तो फिर इसके अंदर ये है कि ईरान के अंदर ये तमाम तर एयर डिफेंस सिस्टम्स जो है नस्ब नहीं है, इजराइल के अंदर नस्ब है। ईरान के पास तो रूसी साख्ता S-300 और बाकी सिस्टम है, लेकिन नाज़रीन ईरान के पास इन तमाम तर एयर डिफेंस सिस्टम्स का तोड़ मौजूद है एंड दैट इज देयर फतेह मिसाइल। फतेह जो उनका हाइपरसोनिक मिसाइल है, वो उसकी मुख्तलिफ वीडियोस भी आपने देखी, उसकी आपने जो है फुटेजेस भी देखी और जिस तरीके से उसने डिस्ट्रक्शन क्रिएट की, उसने जिस तरीके से अहदाफ को जो है वो कामयाबी से निशाना बनाया, उसकी मिसाल नहीं बनती। और फिर मोसाद के हेडक्वार्टर के बाद उनकी अहम तनसीबात को, मिलिट्री इंस्टॉलेशन को, वो जो मिडल रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल्स थे, MRBMs जो थे, उनके साथ साथ ये हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल इसी वजह से किया जा रहा था क्योंकि उसको जो है वो न्यूट्रलाइज करना, इंटरसेप्ट करना ये बहुत मुश्किल है। उसकी स्पीड 18,000 किलोमीटर पर आवर की बताई जाती है और स्पीड ऑफ साउंड से 5 गुना ज्यादा ये स्पीड है। स्पीड ऑफ साउंड से 5 गुना ज्यादा स्पीड अगर एक मिसाइल की होगी तो उसको किस तरीके से रोका जाएगा? और फिर नाज़रीन एक ऐसा मिसाइल जो कि अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, मतलब आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कभी उसका जो रूट है उसको ट्रैक ही नहीं कर सकेगा, तो इसलिए उसका जो है वो उसको डिटेक्ट करना, उसको इंटरसेप्ट करना, न्यूट्रलाइज करना काफी मुश्किल हो जाता है। नाज़रीन उनके साथ ये तय दर तय जो है उनके जो मिसाइल सिस्टम नस्ब है, एरो 2 जो है वो फिजा के अंदर तवील फासले के मिसाइलों को मार करने की सलाहियत रखता है, फिर एरो 3 जो है ये खला के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल्स, फिर जो थार्ड है और आयरन डोम है ये जो है करीब जब आ जाते हैं तो फिर उन मिसाइल्स को जो है वो इंटरसेप्ट करता है, न्यूट्रलाइज करता है। नाज़रीन इनकी कीमतें भी बहुत ज़्यादा है, कुछ एयर डिफेंस के अंदर जो है एरो के है उसके लिए 20 से 30 लाख डॉलर है, थार्ड के लिए 1 करोड़ 20 लाख अमरीकी डॉलर से भी ज़्यादा जो है वो चाहिए होते हैं इसको एक्टिव करने के
کے لیے नाज़रीन अब एक ये जो मिसाइल को न्यूट्रलाइज करना होता है, इंटरसेप्ट करना होता है, तो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरसेप्टर्स चाहिए होते हैं, दैट्स वेरी कॉस्टली। और उसके बाद नाज़रीन फिर जिस तरीके से कुछ मिसाइल्स हैं जिनको इंटरसेप्ट भी नहीं किया जा सकता और फिर उनको दोबारा से रीलोड करने के लिए आधा घंटा तकरीबन जो है वो दरकार होता है। अब ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि विदाउट द हेल्प ऑफ अमेरिका, उनकी मदद के बगैर इसराइल जो है सिर्फ चंद दिनों तक या फिर मैक्सिमम हफ्तों तक या फिर मैक्सिमम महीने तक जो है वो मुकाबला कर सकता है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स का, लेकिन उसके बाद वो कोलैप्स कर जाएंगे। इसीलिए ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिका आज नहीं तो कल इस जंग में कूद जाएगा, ये खदशा जाहिर किया जा रहा है। अब नाज़रीन ये जो है 80 से 90% तक ये कहा जा रहा है कि उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि वो कोलैप्स किस सूरत में करते हैं। ईरान की जानिब से मुसलसल अटैक्स किए जा रहे हैं और मुसलसल अटैक्स भी इस तरीके से एक दो अटैक्स नहीं किए जा रहे बल्कि सैकड़ों की तादाद में मिसाइलों की जानिब से हमला किया जा रहा है। और ईरान की जानिब से सैकड़ों की तादाद में ये जो मिसाइल्स अटैक्स किए गए नाज़रीन, उसका सिर्फ एक ही वजह था कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम को कोलैप्स करना, और वो कामयाब भी हुए, दे हैव सक्सीडेड एक्चुअली, क्योंकि जिस तरीके से उनका एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहा था। अब एक वीडियो और ज़ेरे गर्दिश थी जिसके अंदर उनका अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो खराब हो गया और वो इंटरसेप्टर मिसाइल खुद ही वहां पर जो है उन्होंने अपने ही इलाके के अंदर गिरकर तबाही मचा दी। तो नाज़रीन दैट्स द रीज़न कि उन्होंने ज़्यादा तादाद में जब हमले किए तो फिर बहुत से मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है, चाहे वो थार डिफेंस सिस्टम हो, चाहे वो आयरन डोम हो, चाहे वो एरोस्पेस 1-2 डेविड स्लिंग ही क्यों रहा हो। तो नाज़रीन इस तरीके से वो फिर मिसाइल सिस्टम जो है नाकाम बनाया जा सकता है। नाज़रीन इसके बाद बड़ी खबर एक अहम ये आई थी कि अमेरिका जो है वो इस जंग में कूद सकता है, अमेरिका जो है इस जंग के अंदर वो आ सकता है और ये जो ईरान के ख़िलाफ़ जो है वो जंग जारी है इसराइल की, वो इस जंग के अंदर कूदेगा। अब ईरान की जो एयर स्पेस है उस पर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया गया, ये बयानात आए थे अमेरिका की जानिब से, इसराइल की जानिब से। 200 से ज़्यादा फाइटर जेट जो है उनकी एयर स्पेस के अंदर दाखिल होते हैं, तबाही मचाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन नाज़रीन ईरान ने सरप्राइजेस दिए, ये मानना पड़ेगा पूरी दुनिया को। और एक और सरप्राइज़ उन्होंने ये दिया कि सबसे पहले एक मिसाइलों के शहर की रुनमाई हुई थी अपनी दिफाई ताकत को, अपनी दिफाई पोजीशन को दिखाने के लिए। अब मिसाइलों के शहर के बाद उन्होंने पहाड़ों की चट्टानों के अंदर नाज़रीन एक जंगी तैयारों के रनवे की जो है रूनुमाई की है जिसके अंदर जंगी तैयारे मौजूद हैं। इमेजिन पहाड़ों के अंदर जहां पर कोई डिटेक्ट ही नहीं कर सकता, आप उधर अटैक ही नहीं कर सकते, और अगर अटैक करना है तो आपको बंकर बस्टर बॉम्ब चाहिए होगा जो कि इजराइल के पास मौजूद ही नहीं है, और उसको कैरी करने के लिए B-2 बॉम्बर आपको चाहिए होता है, B-2 बॉम्बर फाइटर जेट चाहिए होता है, वो भी इजराइल के पास है नहीं। वो किसके पास मौजूद है? वो भी अमेरिका के पास मौजूद है। अब फर्दो न्यूक्लियर प्लांट ईरान की जिसको सबसे ज़्यादा ख़तरा है, वो अगर आप चाहते हैं तबाह करना तो वो इजराइल बिल्कुल भी नहीं कर सकता, अमेरिका कर सकता है क्योंकि उनके पास ये बॉम्ब भी मौजूद है और वो फाइटर जेट भी मौजूद है जो कि 13,000 से ज़ायद किलोग्राम वज़न के उस एक बस्टर बंकर बॉम्ब जो है उसको कैरी आउट करते हैं नाज़रीन। तो वो तो इजराइल के पास बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। तो चाहते हुए ना चाहते हुए भी अमेरिका को इस जंग में कूदना पड़ेगा अगर वो वाकई में ईरान को जो है अपाहज बनाना चाहता है, उनके जोहरी प्रोग्राम को निशाना बनाना चाहता है। लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि अगर अमेरिका इस जंग में कूद पड़ा तो नाज़रीन जंग की सूरत हाल कशीदा हो जाएगी और ये एक ना ख़त्म होने वाली जंग का आगाज़ होगा। तो नाज़रीन आप जो है इस बारे में क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइएगा, और इसके साथ साथ इस बारे में आप क्या सोचते हैं कि अमेरिका की जानिब से एक और स्टेटमेंट दी गई थी कि हमें मालूम है आयतुल्लाह ख़ामनेई कहाँ पर मौजूद है, हम बस उसको मारना नहीं चाहते। और फिर ये खबरें भी कुछ दिन पहले ज़ेर गर्दिश थी कि इसराइल ने जो है एक प्लान प्रपोज किया था, सजेस्ट किया था कि हम आयतुल्लाह ख़ामनेई को जो है कत्ल कर देते हैं। एक मनसूबा में नकाब हुआ था जिसका वीटो कर दिया था अमेरिका ने, क्योंकि एक ऐसी जंग का आगाज़ होगा जो कि ख़त्म फिर कभी भी नहीं होगी। हर उस बच्चे के मौजूद होने तक, जब तक ईरान के हर बच्चे के अंदर सांस मौजूद है, उसके आखिरी खून का कतरा मौजूद है, तब तक जो है वो जंग लड़ेगा अगर आयतुल्लाह ख़ामनेई उनके सुप्रीम लीडर को कुछ कर दिया जाता है। तो दैट्स द रीज़न, ये कुछ फैक्ट्स थे, कुछ मुबस्सरीन की जानिब से तज्ज़िया किए जा रहे थे कि ऐसी गलती जो है वो कभी भी नहीं करेगा ना इसराइल और ना अमेरिका। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।